श्रेष्ठ गीत हम सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ेंगे। सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 3, 4, 5 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। The church fight and victory in temptation. She glories in Christ. First verse say, by night on my bed I sought him, when whom my soul loveth. I sought him, but I found him not. I will rise now and go about the city in the streets and in the broad ways. I will seek him whom my soul loveth. I sought him, but I found him not. The watchmen that go about the city found me, to whom I said, saw ye him whom my soul loveth? It was but a little that I passed from them, but I found him whom my soul loveth. I hailed him and would not let him go until I had brought him into my mother's house and into the chamber of her that conceived me. I charge you, O ye daughters of Jerusalem, by the roes and by the hinds of the field, that ye stir not up nor awake my love till his please. Who is this that cometh out of the wilderness like pillars of smoke, perfumed with myrrh and frankincense, with all powders of the merchant? Behold, his bed, which is Solomon's, 80 valiant men are about it, of the valiant of Israel. They all hold swords, being expert in war. Every man hath his sword upon his thigh, because of fear in the night. King Solomon made himself a chariot of the wood of Lebanon. He made the pillars thereof of silver, the bottom thereof of gold, the covering of it of purple, the midst thereof being paved with love. For the daughters of Jerusalem, go forth, O ye daughters of Zion, and behold King Solomon with the crown wherewith his mother crowned him in the day of his espousals, said, in the day of the gladness of his heart. Chapter 4. Christ sets forth the graces of the church. He shews his love to her. She prays to be made fit for his presence. First verse. Behold, thou art fair, my love. Behold, thou art fair. Thou hast dove's eyes within thy locks. Thy hair is as a flock of goats that appear from Mount Gilead. Thy teeth are like a flock of sheep that are even shorn, which came up from the washing, whereof every one bare twins, and none is barren among them. Thy lips are like a thread of scarlet, and thy speech is comely. Thy temples are like a piece of a pomegranate within thy locks. Thy neck is like the tower of David, builded for an armory, whereon there hang 1,000 bucklers, all shields of mighty men. Thy two breasts are like two young roes that are twins, which feed among the lilies, until the day break and the shadows flee away. I will get me to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. Come with me from Lebanon, my spouse with me from Lebanon. Look from the top of Amana, from the top of Shenir and Hermon, from the lions' dens, from the mountains of the leopards. Thou hast ravished
my heart, my sister, my spouse. Thou hast ravished my heart with one of thine eyes, with one chain of thy neck. How fair is thy love, my sister, my spouse! How much better is thy love than wine, and the smell of thine ointments than all spices. Thy lips, O my spouse, drop as the honeycomb. Honey and milk are under thy tongue, and the smell of thy garments is like the smell of Lebanon. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. Thy plants are an orchard of pomegranates with pleasant fruits, camphire with spikenard and saffron, calamus and cinnamon, with all trees of rank incense, myrrh and aloes, with all the chief spices, a fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon. Awake, O north wind, and come thou south, blow upon my garden, that the spices thereof may flow out. Let my beloved come into his garden and eat his pleasant fruits. Chapter 5. Christ awakes the church with his calling. He, the beloved, described. First verse पढ़ेंगे. I am come into my garden, my sister, my spouse. I have gathered my myrrh with my spice. I have eaten my honeycomb with my honey. I have drunk my wine with my milk. Eat, O friends, drink ye. Drink abundantly, O beloved. I sleep, but my heart waketh. It is the voice of my beloved that knocketh, saying, Open to me, my sister, my love, my dove, my undefiled, for my head is filled with dew, and my locks with the drops of the night. I have put off my coat, how shall I put it on? I have washed my feet, how shall I defile them? My beloved put in his hand by the hole of the door, and my bowels were moved for him. I rose up to open to my beloved, and my hands dropped with myrrh, and my fingers with sweet smelling myrrh upon the hands of the lock. I opened to my beloved, but my beloved had withdrawn himself and was gone. My soul failed when he spake. I sought him, but I could not find him. I called him, but he gave me no answer. The watchmen that went about the city found me. They smote me. They wounded me. The lepers of the walls took away my veil from me. I charge you, O daughters of Jerusalem, if ye find my beloved, that ye tell him that I am sick of love. What is thy beloved more than another beloved, O thou fairest among women? What is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? My beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. His head is as the most fine gold. His locks are bushy and black as a raven. His eyes are as the eyes of doves by the rivers of waters, washed with milk and fitly set. His cheeks are as a bed of spices, as sweet flowers. His lips like lilies, dropping sweet smelling myrrh. His hands are so gold rings set with the beryl. His belly is as bright ivory overlaid
with sapphires. His legs are as pillars of marble set upon sockets of fine gold. His countenance is as Lebanon, excellent as the cedars. His mouth is most sweet, yea, he is altogether lovely. This is my beloved, and this is my friend, O daughters of Jerusalem. श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। मैंने कहा मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया। हालेलुया। जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान की हरिणियों की शपथ धरा कर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उसकाओ और न जगाओ। हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है, कल मेरे साथ हुआ, ये गवाही है, ये वचन मिला आज मुझे, ये गवाही भी हो गई थी और ये वचन मिला तो मैं ज़रूर आपको ये शेयर करूँगी। ओके, पहले हम बाइबल रीडिंग करेंगे। तीसरा गीत वधु। यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंध रस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी के सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है? देखो, यह सुलेमान की पालकी है। उसके चारों ओर इस्राएल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। हालेलुया। वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण है। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांघ पर तलवार लटकाए रहता है। सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैंगनी रंग की बनवाई है और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो, वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। 4 अध्याय पहले वचन से, हे मेरी प्रिय, तू सुंदर है, तू सुंदर है। तेरी आंखें तेरी लटों के बीच में कबूतरों की सी दिखाई देती है। तेरे बाल उन बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद पहाड़ के ढाल पर लेटी हुई हो। तेरी दांत उन कतरी हुई भेड़ों के झुंड के समान है जो नहाकर ऊपर आई हो। उनमें हर एक के जुड़वा बच्चे होते हैं और उनमें से किसी का साथी नहीं मरा। तेरे होंठ लाल रंग की डोरी के समान है और तेरा मुंह मनोहर है। तेरे कपोल तेरी लटों के नीचे अनार के फांक से देख पड़ते हैं। तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो कि सब ढालें शूरवीरों की है। तेरी दोनों छातियां मृग के 2 कुड़वे बच्चों के तुल्य है जो सोसन फूलों के बीच में चरते हो। जब तक दिन ठंडा न हो और छाया लंबी होते होते मिट न जाए तब तक मैं शीघ्रता से गंध रस के पहाड़ और लोबान की पहाड़ी पर चला जाऊंगा। हे मेरी प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझ में कोई दोष नहीं। हे मेरी दुल्हन, तू मेरे संग लबानोन से चली आ। तू अमाना की चोटी पर से, शनीर और हेर्मोन की चोटी पर से, सिंहों की गुफाओं से, चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर।
हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरा मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है, तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है, और तेरे इत्रों का सुगंध सब प्रकार के मसालों के सुगंध से, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरी दुल्हन, किवाड़ लगाई हुई बारी के समान, किवाड़ बंद किया हुआ सोता और छाप लगाया हुआ झरना है। हालेलुया। तेरे अंकुर उत्तम फल वाली अनार की बारी के तुल्य है, जिसमें मेहंदी और जटामासी और केसर, लोबान के सब भांति के पेड़, मुश्क और दालचीनी, गंधरस, अगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगंध द्रव्य होते हैं। तो बारियों का सोता है, फुटते हुए जल का कुआं और लबानोन से बहती हुई धाराएं हैं। वधु 16 अध्याय पहले वचन से, हे उत्तर वायु जाग, और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह, जिससे उसके सुगंध फैले। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बाद में बात करूंगी। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन इंटीमेसी का है, जो मैंने आपको बोला। जैसे एक बार मैंने बाइबल रीडिंग के अंत में आपको बोला था, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इकट्ठे अगर एक गार्डन में बैठे, वो कभी चिंता नहीं करते हैं आसपास के लोग उनको किस प्रकार से सता रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। और वो हमेशा एक दूसरे के सुनने के लिए खुलते हैं, अपने अंदर से एक दूसरे के लिए खुल जाते हैं और शेयर करते हैं, तसल्ली पाते हैं, आनंद उठाते हैं। ओके, सब प्रकार से उनके हर एक मन के अंदर से वो एक दूसरे के लिए समय देते हैं और चोट लगने नहीं देते हैं एक दूसरे को कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूँ, या वो उससे कहेगी वो प्रेम नहीं करता। ऐसा नहीं, एक इंटीमेट समय रहता है उनका, जहाँ पर वो सारे खतरों को भूल जाते हैं, सारा आसपास का सारा परिसर भूल जाते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं, है ना। वो इंटीमेसी है, वो इंटीमेसी परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ करता है। ये सारा जो लिखा हुआ सुंदर सुंदर ऐसा डिक्लेरेशन है, आपको अपने लिए करना है, क्योंकि ये आपके आत्मा के विषय कह रहा है। आपका आत्मा इतना सुंदर है। ओके, आपका आत्मा दुल्हन है, आपका आत्मा से मधु समान, आपके आत्मा के होठों से मधु टपकता है, आपके आत्मा के जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है। ये सारा शब्द जो है, ये आपके आत्मा का सुंदरता है, सुंदरता। और ये पवित्र आत्मा और आपका आत्मा का ये रोमांटिक समय है। ओके, ये रोमांटिक समय है। और ये मैं आपको गवाही में बताने के लिए जा रही थी कि ये रोमांटिक समय को कल मैं भारी मात्रा में ढूंढ रही थी, क्योंकि जैसा ही प्रचार शुरू हो गया था, मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया गया था। ओके, मेरे दरवाजे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से ठपाक 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 मारने लगे थे लोग। और जब मैंने जाके पूछा कौन है, तो कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। तो मैंने जाके फिर इंक्वायरी किया, मुझे इंक्वायरी करना पड़ा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ा कौन है और क्यों ऐसे परेशानी में आया था। सब कुछ मैंने ढूंढ निकाला। फिर तब तक प्रचार ख़त्म हो गया था अंकुर नरूला जी का, और सारा सब ख़त्म नहीं हुआ था, थोड़ा आगे निकल गया था। फिर बाद में जब पूरा चर्च अटेंड किया तो भी मैं दुविधा परिस्थिति में थी। लॉर्ड, मुझे रोमांटिक होना है तेरे साथ, मुझे तेरे साथ रोमांटिक होना है। ओके, तो ये इस प्रकार से अध्याय 3 में मैं चल रही थी। मैं ढूंढ रही थी उसको, वो कहाँ है, ढूंढ रही थी। लॉर्ड तू कहाँ है, लॉर्ड कहाँ है तू, मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है तू कहाँ है। ओके, और शाम तक मैं ऐसे ही करते रही।
और जब तक मुझे वो नहीं मिल रहा है तब तक मैं उसे टच करने की कोशिश कर रही थी, तब तक मैं उसे छूने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा टच भी उसका मुझे बहुत कुछ देकर जा रहा था। इतना प्यारा लग रहा था वो समय ऐसा कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ और ये वचन मुझे उसके बारे में बता रहा था। वो पढ़ते समय बहुत प्यारा लग रहा था कि मैं परमेश्वर को इस तरह से ढूंढ रही थी। और बहुत बार हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि मैं प्रार्थना करना तो चाहती हूँ लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है, उकसाने दीजिए, आप उकसाओ मत, अपने आप से जगने दीजिए, है ना। देखिए क्या लिखा है, तब तक उसको न उस्काओ और न जगाओ। 3 अध्याय के 5 वचन में। ओके, तो ये तरीका है आत्मा की भेद है, ये आत्मा के साथ आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। ओके, ये सहभागिता है, ये सहभागिता को वर्णन किया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन में। ओके, आपका आत्मा और परमेश्वर के आत्मा के बीच होने वाला मेल मिलाप जो है, सॉरी नॉट मेल मिलाप, मिलन जो है उसके बारे में ये भाषाएं हैं। ओके, तो आपका सारा जो आपका आत्मा का रोना है, मुझे प्रार्थना करने नहीं हो रहा है, मुझे ये सारा तड़प ही तो लिखा है इसमें, ये वही तो सब कुछ लिखा है इसमें, नया कुछ नहीं है। आपके आत्मा का ही रोना और आपके आत्मा का आनंद क्या है, आपके आत्मा का उत्साह क्या है, वही तो है। आप पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके बारे में बता रहा है। बस दोनों का रोमांटिक बातें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप एंजॉय कीजिए ये श्रेष्ठ गीत, बहुत एंजॉय कीजिए। ये आप आत्मा के साथ का मिलन का लव स्टोरी है। ओके, इससे बढ़कर लव स्टोरी दुनिया के अंदर नहीं है, याद रखना इस बात को। ओके, इससे बढ़कर ना कोई लवर है और ना कोई लव स्टोरी बनी है। आमेन। आप और पवित्र आत्मा द बिगेस्ट लव स्टोरी है। मैं और मेरा परमेश्वर का आत्मा बिगेस्ट लव स्टोरी है हमारे अंदर। ओके, हम बिगेस्ट इकट्ठे हैं, बिगेस्ट अफेयर्स में है। ओके, हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता है। आमेन। हम जलन रखते हैं, हमारे बीच में अगर कोई आता है तो हम जलन करते हैं, नहीं कोई नहीं आना है। सबसे लड़ते हैं, नहीं हमको प्रार्थना का समय है, हमारा मिलन का समय है। है ना। और अगर हमको जुदा कर दिया तो तड़पते हैं हम लोग, है ना। जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़पते हैं, वैसे हम तड़पते हैं, किधर है तू प्रभु। फोन कॉल्स के ऊपर फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस के ऊपर मैसेज करते हैं। जब तक वो शांति हमें प्रवेश नहीं कर जाती है तब तक हम बस टकराते रहते हैं एक दूसरे को, कहाँ है तू, कहाँ है तू, कहाँ है तू। आमेन। वो प्रेम और प्रेमी और प्रेमी का जो स्टोरी होती है, वही आपका आत्मा और पवित्र आत्मा का संबंध है। ये संबंध है, इसको मानिए आप, ये रिलेशनशिप की बातें हो रही है। ओके, हम पढ़ेंगे 5 अध्याय पहले वचन से। वर, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैंने अपना गंधरस और बलसान चुन लिया, मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया, मैंने दूध और दाख मधु पी लिया। सहेलिया, हे मित्रों, तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मनमाना पियो। ये हमारे फेलो बिलीवर्स के बारे में है। हम पहले तृप्त हो जाते हैं पवित्र आत्मा के संगति में, और फिर हम आनंद मनाते हैं कॉन्ग्रीगेशन में, लोगों के साथ सहभागिता में, पवित्र जाति के लोगों के सहभागिता में आनंद मनाते हैं। उन्हीं को बोला है हे मित्रों, हे प्यारो। ओके, और फिर हम उनके साथ रेवलेशन शेयर करते, आराधना करते, तो हम सब इकट्ठे खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, वो फेलोशिप रहती है। ओके, उसके अंदर कोई कड़वाहट नहीं है। देखा क्या लिखा है वहाँ पर, ये वचन क्या लिखा था, 11 वचन, हे मेरी दुल्हन, तेरे होठों से मधु टपकता है, तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है ना। तो ये आत्मा का कैरेक्टर जिसके अंदर है, उसके साथ आपको फेलोशिप करना चाहिए। जिसके आत्मा टूटे हुए है, उसके साथ फेलोशिप मत कीजिए, क्योंकि उनके अंदर का गड़बड़ी, उनके अंदर का दुख, दर्द, कड़वाहट आपके आत्मा की मधुरता, आपके आत्मा की सुंदरता बिगाड़ देता है।
ठीक है। तो उनके साथ फेलोशिप नहीं करना है, इसके लिए दुनियादारी के लोगों के साथ फेलोशिप नहीं करना है, क्योंकि ये कैरेक्टर हमारा आत्मा का खराब हो जाता है। ठीक है। चौथा गीत वधो, 2 वचन से आगे। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था, सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है। मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब मैं उनको कैसा मैला करूं? मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका, और मेरी अंगुलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेंडे की मुठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु न पाया। मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। शहर पनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमको शपथ धराकर कहती हूँ, यदि मेरा प्रेमी तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। सहेलिया, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों में किस बात में उत्तम है? तो क्यों हमको ऐसी शपथ धरती है? मेरा प्रेमी गोरा, वधु कहती है 10 वचन से आगे, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है। उसका सिर चोखा कुंदन है, उसकी लटकती हुई लटें कौवों के समान काली है, उसकी आंखें उन कबूतरों के समान है जो दूध में नहाकर नदी के किनारे अपने झुंड में एक कतार से बैठे हुए हो। उसके गाल फूलों की फुलवारी और जलसान की उभरी हुई क्यारियां हैं। उसके होंठ सोसन फूल है जिनसे पिघला हुआ गंधरस टपकता है। उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने की छड़े हैं। उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। उसके पांव कुंदन पर बैठाए हुए संगमरमर के खंबे हैं। वह देखने में लबानोन और सुंदरता में देवदार के वृक्षों के समान मनोहर है। उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वह परम सुंदर है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। हालेलुया। देखो यहाँ पर एक बात आपको बताना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये पहले वचन से अगर आप पढ़ेंगे, पहले नहीं, 2, ठीक है चलेगा, पहले वचन से। जब कल मैं चर्च में बैठी थी, मतलब ऑनलाइन चर्च में, हमारा जो ANM मिनिस्ट्री, अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज जो चर्च शुरू था, तो थर्सडे का चर्च, तो उस समय में आराधना तक हम बहुत आनंद कर रहे थे। ओके, ये लिखा है ना, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारी पियो, मनमाना पियो। तो वो सारा हम आराधना में समय दे रहे थे और गवाहियों में समय दे रहे थे, बहुत कुछ अच्छा समय चल रहा था। अचानक से मेरे दरवाजे पे खटखटाहट इतना ज़ोर से मारा कि मुझे लगा कोई तो बहुत परेशान है और वो परेशानी में आया है, कुछ बोलना चाहता है। तो मैंने आवाज़ें लगाई, कौन है कौन है कौन है, कोई आवाज़ नहीं दिया। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखो, यहाँ से
4 वचन से देखो क्या है। देखो 3 वचन से शुरू करेंगे। 3 वचन में लिखा है, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी थी, मैं उसे फिर कैसे पहनूं? मैं तो अपने पाँव धो चुकी थी, अब उनको कैसे मैला करूं? तो ये मेरा फेलोशिप का समय था। और देखो, जब आप कलीसिया में हो या आप सेवा करने वाले हो तो अटैक कैसे आता है? जब आप आराधना में भर चुके होते हैं, ओके, जब आप पूर्ण क्लाइमैक्स में पहुंचे होते हैं कि अब बस जो महत्वपूर्ण, जो अर्क होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट डाइट होना चाहिए, उसी के वक्त आपको ऐसा कुछ कर दिया जाता है कि आप भटक जाते हैं उस रास्ते से। और यहाँ पे फिर अगला आने वाला वचन देखो क्या लिखा है। 7 वचन, पहरेदार जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया। ये शैतान हमको क्यों भटकाता है? क्योंकि उसके पहरेदार जो घूम रहे होते हैं उनके हाथों में हम पड़ते हैं और फिर हमारा चोरी नाशघात हो जाता है। हमारा हर प्रकार से शहरपनाह के पहरुओं ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। ओके, यानी जो हमारा इम्पोर्टेंट कवरिंग था, जो हमारा इम्पोर्टेंट हमको गर्म रखने वाला, हमको ढांप कर रखने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला शील्ड जो था हमारा, उसको छीन लेते हैं वो। इसके लिए जब आत्मिक युद्ध होता है, ये मेरा प्रार्थना था, इसके लिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कल जब ये घटना हुई, ये घटना बहुत बार हो चुकी है, लेकिन मुझे इसका बात क्या है, रहस्य क्या है, मैंने प्रार्थना किया था परमेश्वर से, मुझे इसका रहस्य बता। तो आज ये वचन के अंदर से परमेश्वर रहस्य बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको आत्मा के अंदर हमेशा ध्यान रखो। जब इतना मीठा, क्या लिखा है 3-4 वचन का 11 वचन में, हे मेरी दुल्हन, 4 अध्याय का 11 वचन, हे मेरी दुल्हन तेरे होठों से मधु टपकता है। यानी इतना हम ललचा गए होते हैं, मतलब हमको स्टर किया गया होता है आत्मा में, पवित्र आत्मा ने, हम बस मधु टपक रहे होते हैं, हमारे जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है, यानी मिठास रहता है, पूरा संगम मिलन। इसके लिए लोग बोलते हैं ज़्यादा जो मतलब जो पति पत्नी में झगड़ा ज़्यादा होने लगता है, तब उनको पूछते हैं क्या आपने सेक्स किया क्या? ओके, क्योंकि शरीर संबंध जो है वो आपको मीठा बना देते हैं, वो आपको बैड इमोशंस से अलग कर देते हैं। ओके, इसके लिए मैरिड लाइफ में हमेशा सेक्सुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर एक दूसरे की बन नहीं रही है तो उनको अकेले में बैठने का, अकेले में रहने का और संगम करने का मौका देते हैं। ओके, लिटरली ऐसा उनको बोलते हैं कि आप बाकी सब भूल जाओ और उस बात को स्टर करो अपने माइंड में, ताकि आपका मिलन हो जाए और वो मिलन में आपका सारा डिस्ट्रक्टिव इमोशंस खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से मिलन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है और वो मिलन में हमको बाधा नहीं डालना है। बाइबल खुद बताता है उस मिलन में हमको बाधा नहीं डालना है, क्योंकि उसके अंदर की क्रियाएं जो होती है वो वॉयलेंट और एग्रेसिव बन जाता है अगर वो बीच में ही उसे तोड़ दिया तो। ओके, तो यही वो कारण है कि लोग हमको अगर वॉयलेंट और एग्रेसिव बनाना चाहेंगे तो उनका सीक्रेट पॉइंट कहाँ है? हम जब आत्मा के संगति में गहरा आनंद लेना शुरू करते या हम उकसाए जाते हैं और हम अचानक फायर पकड़ लेते हैं आत्मा के अंदर, और फिर वहाँ जब फायर पकड़ लिया तो उसका पूरा कंप्लीट इंटीमेसी हमको आत्मा की सहभागिता में होकर उठना है। लेकिन उसके बीच में जब क्लाइमैक्स का समय आता है तभी हमको वहाँ से भटका दिया जाता है और हम वॉयलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। हम जब वॉयलेंट होते हैं, एग्रेसिव होते हैं तो हम डिस्ट्रक्शन इमोशंस जो रहते हैं उसके अंदर हम अपने माइंड में से चलने लगते हैं, हम नफरत करने लगते हैं, हम दुविधा में पड़ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा, फिर मेरा वो हालत हो गया था कल। ओके, बहुत ज़्यादा हमको दुष्ट आत्माओं से घेर लिया जाता है और हम कट जाते हैं आत्मा के प्रेम में से, आत्मा के शांति में से, ओके, सहभागिता में से। और जब मैं कट चुकी थी, यहाँ पर आधा प्रचार होकर निकल गया था, उसके बाद फिर मेरा ये हालत था जो 3 अध्याय के 1 वचन से 5 वचन था। मेरा पूरा ऐसा हालत था कि मैं दोबारा उस इंटीमेसी के अंदर
निकलने के लिए घुसने के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मेरा प्रेमी मुझे मिल नहीं रहा था। ओके, मेरा प्रेमी पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर का आत्मा मुझे मिल नहीं रहा था। ओके, तो इसके लिए फिर हम क्या करते, इसको बात करते, उसको बात करते, इसको फ़ोन करते, उसको फ़ोन करते, हम ढूंढते रहते हैं कहाँ है मेरा प्रेमी। क्या मैं इसके लिए प्रेयर करूं तो शायद मेरा प्रेमी मुझे मिल जाए, शायद मैं उसको फ़ोन करूं तो कुछ वचन से मेरा प्रेमी मिल जाए। कहाँ पर मैं क्या करूं, क्या मैं संगीत लगाऊं, क्या मैं आराधना करूं, क्या मैं बाइबल रीडिंग करूं, क्या मैं बुक पढूं, किधर है पवित्र आत्मा, कहाँ है, किधर है, ऐसा हम उसको ढूंढते फिरते हैं। और यही मेरे साथ कल हो रहा था। ओके, पहले तो मुझे एकदम एंड क्लाइमैक्स आने का टाइम आ चुका था, उसी वक्त दरवाजे को परेशानी में डाल दिया, मुझे भटका दिया, मुझे जाकर ढूंढना पड़ा कौन है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। मुझे थोड़ा सा दबाव के शब्द बताना पड़ा, मैं यहाँ पे ड्रग्स का, स्मोकिंग का स्मेल बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और चर्च चलता है तब ये ड्रग्स को रिलीज़ करते हैं तो मुझे नींद आ जाता है और मेरे अंदर से वॉमिटिंग जैसा हो जाता है, मुझे परेशानी हो रही है, ये सब मेरे अंदर से उगलने लगी मैं। और फिर जब ये बातें हैं तो मैंने ये भी बोला कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी इन लोगों की, इनके बारे में मुझे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, ये सब मुझे बोलना पड़ा वहाँ पर। और जो मेरे को भटकाने वाले थे वो मुझे देख कर मज़ा ले रहे थे, और वो दूध और मधु जैसे बिहेव्स दिखा रहे थे। यही कारण है कि अब अगर किसी ने मुझे उस समय देखा होगा वॉयलेंट, एग्रेसिव या कुछ भी अटर पटर बकते हुए देखा होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए वहाँ पर मेरा कैरेक्टर लॉस हो जाता है और उनका कैरेक्टर सही दिखाई देता है, क्योंकि वो समझदारी के साथ सोच के शांति से बर्ताव करते, क्योंकि उनको पता है उन्होंने हमको ठोकर लगाया है, इसके लिए वो अपनी तरफ से बराबर से हैंडल करते, लेकिन हमको वॉयलेंट, एग्रेसिव बना के छोड़ देते। माय डियर फ्रेंड, अगर आप सेवा में हैं, अगर आप पुलपिट पर है, अगर आप कहीं पर भी है, मधु को खोने मत दीजिए। ओके, अपने अंदर के मधु को पकड़ के रखिए, अपने होठों से मधु को छोड़िए मत, अपने जीभ के लिए मधु को छोड़िए मत, उसके अंदर के दूध को छोड़िए मत, उसको पकड़ के रखिए। और आप ये जगह में जो 5 अध्याय का 1 वचन में लिखा है आखिरी में, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारो पियो, मनमाना पियो, तो आप पिला रहे होते हैं पुलपिट के ऊपर से, आप पिला रहे, खिला रहे, आप आनंद करा रहे सबको। और फिर आप जब वॉयलेंट और एग्रेसिव, जब आपका क्लाइमैक्स का समय रहता है, जब आपने बहुत कुछ खिला दिया, पिला दिया, अब आनंद कर रहे हैं, आप एकदम मजे का समय, आप पूरी तरह से ताकत में उतरने वाले होते, तभी जाके आपको वॉयलेंट, एग्रेसिव करने वाला काम कर दिया जाता है। ओके, तभी जाके आपको ऐसा कुछ तो सामने लाके रख दिया जाता है कि आपको उसके साथ निपटना ज़रूरी पड़ता है। जैसा दरवाजे के ऊपर मार के जाना, धाड़ धाड़ करके मुझे निपटना बिल्कुल ज़रूरी था, और मुझे निपटने के लिए रास्ते चलना पड़ा, फिज़िकली रास्ते चलना पड़ा। मेरा जो आनंद का समय था, खाने पी रहे, हम पार्टी कर रहे, आत्मिक पार्टी चल रही है हमारी, वहाँ से मुझे निकलना पड़ा। मैंने खो दिया वो समय और मुझे ये बखेड़े में पड़ना पड़ा। और फिर मेरे सामना कौन किया? पहरेदारों ने किया, है ना। मुझे चोरी नाश घायल होने दिया, और शहरपना के पहरुए ने मेरी चद्दर मुझसे छीन ली। जो मेरा शील्ड, मेरा समय महत्वपूर्ण, जो बहुत मगज था, मगज जो बहुत ताकतवर, ऐसा एक समय मेरे अंदर भरने का समय आ गया था, वहीं पर जाके मैंने क्या किया? छोड़कर अलग निकल गई। तो वो स्ट्रेंथ मेरा ख़त्म कर दिया उन्होंने, मेरे हाथ से छुड़वा दिया वो। ओके, मेरे टाइमिंग में से छुड़वा दिया। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि दोबारा फिर 3 अध्याय के समान मैंने परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया। मुझे प्राप्त नहीं हुआ। एक छोटा छोटा स्पेस ऑफ टाइम में भी परमेश्वर मुझे छू लेता था और मैं उसको पकड़ ले रही थी। फिर मैंने फ़ोन कॉल पे कुछ बातें किया, किसी के लिए प्रेयर्स किया,
किसी को काउंसल्स किया, किसी के साथ मन मुटाव था उसको मैंने शांत किया, तसल्ली किया। ये रास्ते मैंने चला। ये रास्ते चलते वक्त मैं देख रही थी अगर यहाँ से कुछ पवित्र आत्मा अब मुझे फ्री करके मिलता है कि नहीं। ओके, सब कुछ किया मैंने। ओके, किसी से माफ़ी मांगना है माफ़ी मांग ली, कि सही करना है अपने आप को सही किया, व्यवस्थित किया, और मैंने वेट किया पवित्र आत्मा मुझे मिलता है क्या, दोबारा मुझ में प्रवेश करता है क्या। ओके, आपको संगम होता है, आपके आत्मा और पवित्र आत्मा का संगम होता है, तभी आप आत्मिक रहते हैं। अगर आपके आत्मा का और पवित्र आत्मा का संगम नहीं है तो फिर आप तड़पते हैं। समझा? वो संगम के लिए आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, वॉयलेंट किया जाता है, एग्रेसिव किया जाता है, डिप्रेशन में आप चले जाते हैं, रॉन्ग डिसीशंस में आप चले जाते हैं। ये सारा बातें आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको ये आज के टीचिंग में इस चैप्टर से होकर जा रहे हैं, इसके लिए मैंने आपको ये सारा चीज़ें सिखाया। ठीक है, क्योंकि अगली बार आपको ये नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। नहीं, आपके आत्मा का फाइट है, क्योंकि आपका और आपका मतलब आपके आत्मा का और आपके अंदर का पवित्र आत्मा का मिलन तोड़ने के लिए ये किया जाता है। अगर आप दोनों इकट्ठे रहेंगे तो आप एक दूसरे को गर्म करते हैं। ओके, क्योंकि वचन लिखा है ना, सबोपदेशक में आपने पढ़ा कि जहाँ पर अकेला है वो फायदे का नहीं है, वो अपने आप को शांत तसल्ली नहीं दे सकता है, ना ही गर्म कर सकता है। तो दो हो तो बेहतर। तो इसके लिए हमको परमेश्वर ने दो बना के एक कर दिया है, ताकि हम बेहतर बने, हम एक दूसरे को गर्म कर सके, हम एक दूसरे की सहायता कर सके, हम एक दूसरे के संगति में रह के हम जीत सके। जहाँ पे लिखा है एक जन, कोई मुझे कह रहा था कि आपको संगति में रहना चाहिए तो फिर आपका बहुत ज़्यादा काम होगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी संगति दे दिया है और परमेश्वर का आत्मा है वो। ठीक है, जहाँ पर एक जन है वो 1000 के लिए काफ़ी है, और जहाँ दो है वो 10,000 को गिरा देता है। तो हम अभी 2 जन हैं, पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा। ओके, इसके लिए हमको जब युद्ध में उतरना है, प्रार्थना में उतरना है, तो गड़बड़िया को आप डरना नहीं है। गड़बड़िया आने का एक विशेष समय रहता है। कल दशमी था, है ना, तो दशमी या 11वां था, पता नहीं, वो एक आइडल का टाइमिंग था कल। ओके, तो उसके अंदर वो लोगों का अटैक करने का समय रहता है। वो अटैक, इसके लिए सबोपदेशक में क्या लिखा है कि कुछ खाने का समय है, कुछ पीने का समय है, कुछ सोने का समय है, कुछ इमोशंस में समय असमय, सब कुछ समय असमय में है, कुछ रोने का समय है, कुछ हंसने का समय है, कुछ दुख करने का समय है, कुछ शांत रहने का समय है। ये सारा इसको बोलते हैं चौघड़िया। ओके, यही वो मून फेसेस में देखे जाते हैं, जो अन्य जाति लोग उसको फॉलो करते हैं। ये चौघड़ियों के अंदर से होकर जाके वो आपको अटैक करते हैं। ये चौघड़ियों में जब आपका अच्छा समय रहेगा वो आपको अटैक नहीं करेंगे, मतलब चौघड़ियों का अच्छा समय रहता है तभी आपको अटैक नहीं करते। लेकिन चौघड़ियों में कड़वा समय जो रहता है, जलजलाहट का जो समय रहता है, अग्रेसिव होने का समय रहता है, गड़बड़िया होने का अलग अलग समय है। ओके, वायलेंट होने का एक समय है जिसमें मर्डर तक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हाथापाई हो जाती है। एग्रेसिव होने का समय है जिसमें बहुत सारे तू मैं हो जाता है, विवादें हो जाती है। एक ऐसा भी समय है जिसमें आप गड़बड़ी में फंस जाते हैं, कंफ्यूज्ड रहेंगे। ओके, ऐसा भी समय है जिसके अंदर आप डरते रहेंगे, पैनिक होते रहेंगे। ओके, घबराहट होती रहेगी, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, वो भी समय है। हर एक समय को आप समझिए कि ये ऑलरेडी पवित्र बाइबल आपको सिखा रहा है। फिजिकल मैटर्स में ये समयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आत्मा और परमेश्वर के आत्मा का मिलन जो है उसको खतरे पैदा किए जाते हैं, आपको उससे तुड़वा दिया जाता है। इसीलिए तो पौलुस ने कहा ये ऐसी कौन सी बात है, क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या लड़ाई झगड़े, क्या विवाद, कौन सी बात है जो मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। आमीन। इसके कारण आपको ये बोला गया है। तो ये वचन को आप, ये कनेक्शंस अगर आप देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा क्यों आप आत्मिक जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। ओके, कल मेरे एक बच्चे के साथ मुलाकात कर ली मैंने, ज़बरदस्ती मैंने कर ली। वो प्रभु में तो आया लेकिन वो अभी भी थोड़ा बहुत ड्रिंक विंक करता है। तो उसका मैंने देखा,
उसका आत्मा का संगति जो पवित्र आत्मा के साथ है उसको कितना डैमेज कर रखा था, कितना डैमेज कर रखा था। जो पहले था, वो बैप्टिज्म लेने से पहले था, बहुत डैमेज था। उसके बाद जब बैप्टिज्म लेके आया तो उससे ज़्यादा डबल टिबल डैमेज्ड हो गया वो। ओके, तो कितना संघर्ष हो रहा है उसके साथ, कितना संघर्ष। उसका स्पिरिट और परमेश्वर का स्पिरिट का मिलन को डैमेज कर रहे हैं वो। ओके, अगर आप देखो, अगर आपने बहुत देखा रहेगा, सेक्सुअल लाइफ के बारे में आपने बहुत सुना रहेगा, एनिमल्स के साथ सेक्स करते हैं, नहीं तो फिर स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, कितना डैमेजेस कर रहे हैं वो। ओके, वो क्या कर रहे हैं पता है? उसका जो मोल है वो क्या है? बच्चे पैदा करना। उसका मोल क्या है? परमेश्वर ने उत्पत्ति के 2 अध्याय में, पहले अध्याय में दे दिया है उसके ब्लेसिंग्स क्या क्या मोल है ना। तो उस मोल के आधार से उनको जो उत्पन्न करना था वो उत्पन्न नहीं कर रहे, वो वेस्ट कर रहे हैं। जो फ्लूइड निकलता है सेक्सुअल लाइफ का, उसमें से क्या होना चाहिए? उसके अंदर से बच्चा पैदा होगा, ये होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उसको वेस्ट कर रहे हैं। ओके, वो सिर्फ वो फीलिंग्स को ललचा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फीलिंग्स के एनर्जीज ज़्यादा बढ़ा रहे पृथ्वी के ऊपर, ताकि लोग उसके ही पीछे भागने लगे, उसके लिए दीवाने रहे और परमेश्वर के आत्मा के संगति को वो छोड़ते जाए। ओके, तो उसके पीछे जाने वाला इंसान पैसे के पीछे जाता है, उसके पीछे जाने वाला इंसान सारे प्रकार के दुष्टता के पीछे जाता है। इसके लिए पैसा रूट बन जाता है दुष्टता का। ओके, इसके लिए वो उस तरफ से निकल जाते हैं जिसके अंदर वो खुद अपने ही हाथ से अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। तो जब आप एग्रेसिव हो जाते हैं, जब आप वायलेंट हो जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, आपके आत्मा और परमेश्वर के आत्मा का जो मिलन है, जो प्रेम बैठा हुआ है, उसमें वो दरार ला रहे। आपका मधु आप खो देंगे, आपके जीभ में रखा हुआ, जीभ के नीचे रखा हुआ मधु, स्वीटनेस और दूध आप खो देंगे। ओके, फिर आप तड़पते रहेंगे। उसको आप संभाल के रखना है, वो आपका डायमंड है। ओके, वो आपका बहुमूल्य। इसके लिए ये सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ने की ज़रूरत है। वो आपको बताता है किस तरह से पवित्र आत्मा आपके लिए ललचाता है और किस तरह से वो चाहता है कि आप उसके लिए उसकी लालच रखें। ओके, जुड़ के रहो पवित्र आत्मा के साथ। और आप दोबारा पुलपिट के ऊपर से अगर आप काम करते हैं, आपको वार्निंग देती हूँ मैं, आप लोगों को खिला रहे, पिला रहे, आनंद करा रहे, और फिर जब आपको ऐसा कुछ सामना करना पड़ता है जिसमें आपको वायलेंस, एग्रेसिवनेस दिखाना पड़ता है, तो उस जगह में आप चुप रहिए, क्योंकि लोग उसको भी खा रहे हैं। ओके, यानी आप खा रहे मीठा 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 मीठा, और अचानक से कोई पत्थर की, कंकर की कोई पूड़ी डाल दे तो वो भी चबाते चबाते बीच में आ जाएगा। वो पेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, बीमार कर देगा। ध्यान रखिए, हम लोगों के बीच में परमेश्वर के मधु को फैला रहे, परमेश्वर के आनंद को फैला रहे, कंकर नहीं फैला रहे। ध्यान रखना ये बात को। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। हम धन्यवाद करते हैं। ये वचन कितना गहरा है खुदा परमेश्वर। हमने कभी नहीं सोचा था खुदा परमेश्वर कि आज के समय तू ऐसा कुछ हमारे लिए ला कर रखा है कि ये वचन हमारी आंखें खोल देगा। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स करने की हम तुझसे विनती करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, ये वचन हमें फिट एंड फिक्स करने दे। धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। रिदान अश्कर हासा लहब ओ कसियांसो। देखो 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान में क्या है। ल्यूक 23 चैप्टर 13 वर्स से 25 वर्स, 2 सैमुअल 7 चैप्टर 8 चैप्टर। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 13 वचन से 25 वचन तक, और दूसरा शमूएल 7 अध्याय 8 अध्याय।
हम पढ़ेंगे अकेले में अपने पर्सनल टाइम में। अभी आपको पता है आपने क्यों अकेले में पर्सनल टाइम में इन वचनों को पढ़ना है, क्योंकि ये इसके पहले जो हमने प्रचार, अभी मैंने वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन के अध्याय पढ़ते समय हिंदी के वक्त में आपको बताया क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए, आत्मा में क्या हो रहा है आपका। ठीक है, तो आपको ये आत्मा का संगति है, ये रोमांटिक समय है आपका और पवित्र आत्मा का। अकेले में बैठकर वचन पढ़ना, ये आपका और परमेश्वर के आत्मा का रोमांस चल रहा है उस समय। ओके, आप रोमांटिक रहो पवित्र आत्मा के अंदर। ओके, पवित्र आत्मा के साथ आप लवलीन रहो, लगन के साथ रहो, आप बिल्कुल जुदा मत हो एक दूसरे के साथ। ओके, इतना गहरा समय है ये, तो उसमें आपको अब मुझे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको, अगर आप छोटे बच्चे हो, अगर समझो आप ऐसी उम्र में नहीं है जिसमें आप रोमांटिक नहीं समझ सकते, तो आप ये समझ जाइए कि आपका बेस्ट फ्रेंड है पवित्र आत्मा। ओके, आप उसके संगति को मत छोड़िए, आप ललचाइए उसके लिए, ललचाइए, आप लालच को उत्पन्न कीजिए, खुद होकर आप लालच को लेकर आइए। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज मैंने उसको मिलना है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज मैंने उसको सुनना है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज मैंने उसके बारे में कुछ तो जानना है। ऐसा करके आपने पर्सनल टाइम निकालना है ये वचनों को पढ़ने के लिए। ओके, और देखो, दो साल के अंत में आप देखेंगे परमेश्वर का आत्मा आपको इसमें सहायता करेगा, और उस डेस्टिनी में आप देखोगे अपने आप को जो परमेश्वर चाहता है, बनाया हुआ, व्यवस्थित किया हुआ, फिट और फिक्स किया हुआ। ओके, व्यवस्थित ऑर्डरलीनेस में आपको लिया हुआ परमेश्वर उपयोग करेगा। और ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने उसके अनुग्रह का आत्मा, दया का आत्मा है, वो इतना मीठा परमेश्वर है, इतना प्यारा परमेश्वर, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपको ये उसकी ओर से दे रहा है। तो हमने कितना बड़ा वैल्यू समझना चाहिए उस हमने, है ना। जो दुनिया में है वो सब नाश होने वाला है, ये एकमात्र है जो परमेश्वर दे रहा है, वही रहने वाला है। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे इस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाने में हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, आज आपने सिखाए हुए सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। और निश्चित है खुदा, ये समय आपने ठहराया था, पवित्र आत्मा ने पूरा किया, और इसका फसल बहुत तायत का है। हमें फिट एंड फिक्स और ऑर्डरलीनेस में लेकर आने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। और आगे और भी ज़्यादा हमें संगति में बनाए रख पवित्र आत्मा, तेरे मिलन में हमें बनाए रख। जो भी हमने चोटें खाई, जो भी हमारा नुकसान हुआ है, सब कुछ तो रिस्टोर करके दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।